So can we solve the metaphysical questions? His answer is yes. And he thinks that the critique of pure reason will give you those answers, where reason will examine itself and tell you how answers to these problems can be provided. The critique is divided into doctrine of elements and doctrines of method. The doctrine of elements is divided into aesthetic, logic, and logic is further divided into analytic and then dialectic. So substantially there are three parts: aesthetic, analytic and dialectic, and they are talking about sensibility, understanding and reason. Now, as we mentioned last time, the very first discussion that you find is the discussion between analytic and synthetic judgments. Now, an analytic judgment is a judgment where the subject is supposed to contain the predicate. And we have heard it so often, we think that it is perfectly alright. What is the condition of calling some judgment analytic? That its negation is right. And you have seen that how Quine is saying that I don't understand all of this, that what does it mean by self-contradictory? You say that no, it is explained by necessity. When you say that it is necessary, then I say what does it mean? And then I want synonymy, and when you explain synonymy, then you say synonymy can be explained in terms of replaceability one by other in all contexts, and there that also I don't understand, and therefore, and what do you mean by meaning? As the do you mean by meaning naming, and do you mean by meaning referring, and all those have problems. But if you go to Kant, then what is Kant saying? What are the conditions of taking something to be a priori? So he says an a priori is something which is necessary and universal. एंड हियर आई थिंक, क्योंकि अब आप लोग इस समय 2023 में पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको शुरू में ही वो प्रॉब्लम लेके रखना चाहता हूँ आपके सामने. व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग बीइंग ए प्रायोरी, तो आप ये बताइए कि उसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने आप में नेसेसरी है और यूनिवर्सल. कई बार कांट ये कहते हैं कि जो कुछ नेसेसरी है ये आप एक्सपीरियंस से नहीं जान सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस कैन टेल यू व्हाट इज द केस, बट एक्सपीरियंस कैनॉट टेल यू दैट इट मस्ट बी सो, है ना. एक्सपीरियंस से ही पता रहेगा ये पीला है, ये नीला है, ये सफ़ेद है, पर ये पीला ही होना चाहिए, और अगर ये पीला नहीं होगा तो ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगा. ये क्या मैं एक्सपीरियंस से जान सकता हूँ? नाउ ये कांट की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इससे माना जाता है कि भाई नेसेसिटी एंड स्ट्रिक्ट यूनिवर्सैलिटी, these are the two conditions of making something a priori. Now tell me, do you feel there is a problem here? स्टेटमेंट कंटिंजेंट है या नेसेसरी है, इसमें कांट कह रहे हैं कि स्टेटमेंट कंटिंजेंट या जजमेंट की भाषा नेसेसरी है, ये बात आप अनुभव से नहीं पता लगा सकते. पर हम क्या कह रहे हैं? स्टेटमेंट नेसेसरी है ये बात अनुभव से नहीं जानी जा सकती, या स्टेटमेंट का कंटेंट अनुभव से नहीं जाना जा सकता?
a triangle has three angles, or this is a triangle. These are two sentences. This is a triangle, I can know by experience. Triangle has three angles, I cannot know through experience. But this is a triangle is a contingent sentence. Can I know by experience? This has been, in fact, one of my major arguments in this discussion for the past 20 years or more so. That Kant is saying that necessity cannot be known by experience, and therefore it is a priori. But I want to say that actually contingency also cannot be known by experience. That this is a triangle can be known by experience and is a false sentence. But that this is a triangle is a contingent statement cannot be known by experience. So both contingency and necessity are not known by experience. तो जो कांट का ये सबसे बड़ा फॉर्मुलेशन है कि जो वो ये कहते हैं कि क्योंकि अनिवार्यता अनुभव आपको केवल सत्य बताती है, अनिवार्यता नहीं बताती, इसलिए एप्रायरिसिटी वहाँ पर एप्रायरिसिटी से आप क्या जानते हैं? दैट द स्टेटमेंट इज नेसेसरी, और डू यू नो द कंटेंट ऑफ दैट स्टेटमेंट? एंड इज इट नॉट द केस दैट बोथ एप्रायरिसिटी एंड ए पोस्टीरियरिटी आर बोथ नोन ए प्रायरि? तो एक्चुअली मेरे एक पेपर में आई हैड रिकमेंडेड दैट एक्चुअली यू शुड हैव अ डबल reiteration. A priori necessary statement जब आप कहते हैं तो आपको कहना चाहिए a priori necessarily so. इसमें एक आप कह रहे हैं a prioricity से आप उसकी necessity को जानते हैं, और एक में आप ये जानते हैं कि वो ट्रायंगल का कंटेंट जो है, वो ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं, ये बात भी a priori आप जानते हैं, ये बात कि वो नेसेसरी है, ये बात भी आप a priori जानते हैं. दूसरा, ये वाक्य कि ये ट्रायंगल है, इस वाक्य में आप ये कंटिंजेंट अगर है तो आप ये जानते हैं कि इसकी कंटिंजेंसी को आप ए प्रायरि जानते हैं और इसके कंटेंट को आप पोस्टीरियरि जानते हैं. तो केवल ए प्रायरि नेसेसिटी ए प्रायरि से जानी जा सकती है. इसके आधार पर आप जो बात डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे थे वो इतनी ईजिली नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिंजेंसी और नेसेसिटी दोनों ही ए प्रायरि जानी जाएंगी. That's not what he says, and for ages together that's not what we understood. Even Kripke did not follow that, because everybody keeps on believing that ये जो experience can tell us what is the case, but it cannot say that it must be so. इस बात को लेके सब लोग केवल ये मान रहे थे कि कांट का मेजर कंट्रीब्यूशन यही है कि वो एप्रायरिसिटी को नेसेसिटी के साथ इस तरह से रिलेट करते हैं, क्योंकि नेसेसिटी अपने आप में एक्सपीरियंस का विषय नहीं है, पर वो काउंटर पार्ट भी नहीं है उसका. मेरा ये कहना है कि उसका काउंटर पार्ट कंटिंजेंसी भी नहीं है. सो कंटेंट ऑफ द स्टेटमेंट, सी, एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, नेसेसिटी इज एक्चुअली अ स्टेटमेंट मोडालिटी. और ये बात कांट भी बाद में बात कह रहे हैं. इंपेरिकल नेसेसिटी तो वो खुद ही मना कर रहे हैं. तो फिर वो अगर अरिस्टोटेलियन होते तो वो ये बात कह सकते थे कि नेसेसिटीज आर इन नेचर. अब वो नेसेसिटीज आर इन नेचर तो वो खुद ही नहीं मान रहे हैं. इस वजह से जब हम लोग इस लेवल पर कांट की क्रिटिक ऑफ प्योरिज्म को देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत सामने आती है कि वो ए प्रायरिसिटी. सी व्हाट इज ही सेइंग? सिंपली सेड, अभी तक उन्होंने क्या कहा? ऑल आर नॉलेज बिगिंस विद एक्सपीरियंस बट इट इज़ नॉट डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस. डेरिवेशन का क्या मतलब है? ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर इतनी बात यह है कि अगर हम आसान तरीके से समझना चाहें तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऑल आर नॉलेज बिगिंस विद एक्सपीरियंस बट इट इज नॉट ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉलेज आर वेरीफाइड बाय एक्सपीरियंस. और
satisfied by experience or confirmed by experience, whatever language you find, each has its own problem. So ये बात तो सही है कि आप कोई भी बात कहेंगे तो वो बात अपने आप में, अगर उसके पहले की पूर्व अनुभव आपको होना ही चाहिए. आप एक बच्चे हैं तो आपने भाषा सीखी होगी, आपने दुनिया से उसको कनेक्ट किया होगा, आपको कन्फर्मेशन डिसकन्फर्मेशन मिला होगा, इसको चश्मा कहने पे हाँ मिला होगा, इसको मोबाइल कहने पे हाँ मिला होगा, इसको चश्मा कहने पे ना मिला होगा. तो ये सारे एक्सपीरियंस की जो सीक्वेंसेस हैं, ये आपके किसी भी वाक्य बनाने की, किसी भी ज्ञान को फॉर्मुलेट करने की पूर्व मान्यता है. लेकिन ये वाक्यों में सभी वाक्य जब या कथन या निर्णय जब आप बना रहे हैं, उनको सत्यापित करने के संदर्भ में कुछ वाक्य केवल अनुभव के माध्यम से सत्यापित होंगे और कुछों को सत्यापित करने के लिए अनुभव की अपेक्षा नहीं होगी. इतनी बात है सर. मुझे अभी भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन की जरूरत है कि जहाँ तक कह रहे हैं ऑल नॉलेज बिगिंस विद द एक्सपीरियंस, और आप कह रहे हैं कि बट ऑल नॉलेज कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय द एक्सपीरियंस. पर अगर हम कांट को देख रहे हैं तो वो कहेंगे नो नॉलेज कैन बी वेरीफाइड बाय द एक्सपीरियंस, बिकॉज जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है वो अनलेस एंड अनटिल कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सिस्टमेटाइज, तो कोई भी नॉलेज को एक्सपीरियंस को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता. राइट. इसी को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे, और वही मैं अभी सबसे पहले मैंने यही बात कही थी कि एक्सपीरियंस शब्द का मतलब कांट में क्रूड सेंसेशनलिज्म के रूप में नहीं है, और वो एक्सपीरियंस मान ही उसको रहे हैं जिसमें कि आपकी अनुभूति और आपके कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिल गए हैं. हाँ, एक्सपीरियंस, क्योंकि वो जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखिए, वो टर्म्स असल में यही बात हो जाती है कि वो ओरिजिनल लैंग्वेज में भी क्या है. इंट्यूशन का मतलब है डायरेक्ट अवेयरनेस ऑफ दैट. कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट द वे द माइंड synthesizes the representations, जिसमें कि वो एक representative theory को मान के चल रहे होते हैं. What is the object of it? Because this I think is very important for all of you philosophy students, that you have to be very careful about the use of the term. The term idea in Plato is actually not the same as the term idea in John Locke. The term idea of John Locke is not the same as the idea when it is in case of David Hume, and it is certainly not the same as it is in the case of Bishop George Berkeley. So the term ideas have changed, and normally what do we think when we are using English language? Then we say idea, मुझे एक idea आया, then we are thinking that we have some a woolly kind of a thing which is happening in my mind, and I'm not necessarily giving you a representational picture in the others. हाँ, और प्लेटो में भी आप देखते हैं आइडिया और आइडियल दोनों शब्दों का मिला जुला सा विवरण मिलता है, जिसमें आइडियन का भी वर्जन है. आइडिया आदर्श भी हैं और आइडिया नॉन फिजिकल भी हैं. कई बार एक आध जगह पर वो कहते हैं दे आर आइडियाज इन द माइंड ऑफ गॉड, तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लेकिन वो एक ही आध जगह किया गया है. सो दैट्स व्हाई यहाँ पर भी हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्सपीरियंस शब्द से उनका क्या मतलब है. तो एक्सपीरियंस से उनका मतलब है वो जो कि संवेदना और बुद्धि के विकल्पों के माध्यम से हमें होता है, उसको वो एक्सपीरियंस कह रहे हैं. और अगर ना कह रहे होते तो जो रजनी मैम कह रही थी वो बात उनको माननी पड़ती कि भाई कोई भी नॉलेज फिर एक्सपीरियंस से नहीं होती. इंट्यूटिव का मतलब यहाँ पे है डायरेक्ट. वो किसी स्पेशल फैकल्टी के रूप में इंट्यूशन को नहीं मानते. फैकल्टी में केवल रीजन, अंडरस्टैंडिंग और सेंसिबिलिटी ही है. सेंसिबिलिटी इज द पैसिव कैपेसिटी टू रिसीव सेंसेशंस. Understanding is the active capacity to employ the categories of understanding and put them on that, and reason is the capacity where sometimes you exceed and sometimes you then find ways of getting out of it. So reason का जो गड़बड़ फंक्शन है वो लॉजिक ऑफ इल्यूजन में डायलेक्टिक में वो दे रहे हैं, और क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन खुद, लेकिन रीजन की एक्सरसाइज से इन तीनों चीज़ों को एग्जामिन करने की प्रयास. ठीक है. नाउ व्हाट इज कांट, इफ यू ट्राई टू से, ये जैसे इंट्यूशन शब्द का आपने प्रयोग देखा, इसका जो आप ट्रांसलेशन देखते हैं खासतौर से केम स्मिथ में, इंट्यूशन इज द इमीडिएट एप्रीहेंशन of a content which is given
is due to the action of an independently real object upon the mind. और ये रीडिंग अपने आप में क्लियरली ये वाली बात कह रही है कि वो जो कई लोग जो बार बार कांट को आइडियलिज्म की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, वो रीडिंग हम नहीं ले सकते. So, the capacity to receive or obtain representation, that is sensibility. Representation is taken as the sense of any cognitive state. Sensation is the effect in the mind produced by the object when we are affected by it. जैसे आपको याद है लॉक में आपने क्या देखा था, थिंग्स हैव पावर टू प्रोड्यूस आइडियाज इन अस, वी हैव द पैसिव कैपेसिटी टू दैट. वो ही यहाँ पर एक तरह सेंसेशन इज द इफेक्ट ऑन द माइंड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन वी आर अफेक्टेड बाय इट. An empirical intuition is an intuition which relates itself to its object only through sensation. All our intuitions relate to their objects only through sensation and therefore are empirical. Now, therefore, the language further which he is using the language of representation in terms of, then what is the language of representation saying? That there is something which is represented. The other language which he keeps on using is the language of appearances. And appearance is not the same as phenomena. Phenomena क्या है? जो कि categories of understanding से mediated है. और appearance क्या है? The mere objects of our sensation. So when you have appearances, and there again, like you see it in the epistemological discussions of Nyaya, that sometimes in the analytical philosopher's discussion, we want to say that we are going to analyze only the notion of knowledge, and we are not going to discuss the process of knowledge, because the process of knowledge will have to be discussed by psychologists. Empirical psychologists in development psychology will tell us that how process of knowledge happens, how it happens in a 1-year-old or a 6-month-old and so on and so forth. But when you look at the Nyaya discussions, you find that sometimes there is a discussion both of the process of knowledge as well as the notion of knowledge itself. Similarly in Kant, though he does not actually go to the psychological process of it, yet it is not so clearly separated as the more analytically minded would like. So they would talk about the step. Now, निर्विकल्पक प्रत्यक्ष सविकल्पक प्रत्यक्ष से पहले होता है, ये एक कालिक प्राथमिकता है या एक तार्किक प्राथमिकता है. काल में पहले निर्विकल्पक होगा टाइम t1 पर और टाइम t2 पर सविकल्पक होगा, ऐसा नहीं है. ये बात कही जा रही है कि जैसे ही आप सविकल्पक प्रत्यक्ष की बात करते हैं तो आपको प्रिज्यूम करने पड़ेगा कि इसके पहले, अब वो पहला लॉजिकल है या टेम्पोरल है, तो टेम्पोरल कहने में मुश्किल ज़्यादा होती है, वो लॉजिकल रिक्वायरमेंट है. और वही बात यहाँ पर ये कही जा रही है कि व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, व्हेन यू टॉक अबाउट इंट्यूशन, देन दिस इंट्यूटिव एक्सपीरियंस इज एक्चुअली द categorized experience, and appearance is when things appear to us directly. Appearance is actually a logical presupposition. You can't have categorization unless there is something which is made available to you through the sensation. Right? I have again a difficulty. Yeah. न्याय भी कहता है और बुद्धिस्ट भी कहते हैं, लेकिन डिफ़िकल्टी फिर ये हो जाती है कि जिसको वो टाइम मान रहे हैं, वो टाइम में भी डिफ़िकल्टी होती है, ख़ासतौर से बुद्धिज़्म में, कि क्षणों को वो ये कहते हैं कि क्षण जो हैं वो सत्ता के क्षण हैं, वो काल के क्षण हैं कि सत्ता के क्षण हैं, उनमें भी हो जाता है. देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ, आई शुड नॉट यूज द टर्म कन्फ्यूजन और एम्बिग्विटी, बट देयर इज़ अ रिचनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट विच नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड. इनको कंफ्यूज कह के हम लोग अपने आप को कोई बहुत क्लियर माइंडेड कहें तो दैट आई थिंक वुड बी एरोगेंट. But we need to understand that when we are taking the notion of kshana,
then it is not really minute. So because it's a unit of existence, as it were. Now to talk about a unit of existence is actually very counter ordinary language. I wouldn't say, again say counterintuitive, because intuitions are subject to space and time and your level of understanding. So what may be absolutely intuitively clear to Sri Aurobindo may never dawn upon me. मेन बात जो मैं फिर आज इस वाली चीज़ में करने के बाद immediately I want to come to the aesthetics is that what I expressed in the first thing. Analytic synthetic a priori a posteriori ये लैंग्वेज पहली बार कांट इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके पहले की जो लैंग्वेज थी that was about ideas concerning matters of fact, ideas concerning relationship between ideas. And so ideas concerning matters of fact and ideas concerning relationship between ideas in Hume, and in Leibniz it was truths of reason and truths of fact. But in Kant you find these terms being used: necessary, a priori, analytic and synthetic. So analytic is a syntactical distinction. और इसके बारे में भी मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हम 20th सेंचुरी में डिस्कस कर रहे हैं कि लोगों ने ये आपत्ति उठाई कि कांट खुद यहाँ पर कई कैटेगरीज को आपस में मिला रहे हैं. ए प्रायरी ए पोस्टीरियरी क्या है? प्रागानुभविक और अनुभव सापेक्ष एक एपिस्टेमिक कैटेगरी है, हम किसी चीज़ को कैसे जानते हैं. नेसेसरी और कंटिंजेंट किस प्रकार की कैटेगरी है? स्ट्रेंजली क्रिप्के कहते हैं मेटाफिजिकल. तत्वमीमांसीय सत्ता क्या है? हम लोग जनरली सेफ तरीके से केवल उसको मॉडल मान रहे थे. एनालिटिक सिंथेटिक एक सिंटैक्टिकल कैटेगरी है कि उस वाक्य का स्वरूप क्या है. फैक्चुअल नॉन फैक्चुअल उसकी एपिस्टेमिक इंपोर्ट के ऊपर आधारित है. तो जब आप एनालिटिक कहते हैं, एनालिटिक्स किसी स्टेटमेंट को, और आप कहते हैं कि हम लोग जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे वो आमतौर पर ये मानते थे ना कि ऑल एनालिटिकल स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी एंड ऑल अननेसेसरी स्टेटमेंट्स आर ए प्रायरी, तो उनका ये कहना है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ऑल नेसेसरी स्टेटमेंट्स आर ए प्रायरी एंड ऑल ए प्रायरी स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी, एंड दैट इट इज सो इज नेसेसरी, नॉट जस्ट co-extension की all creatures with kidneys are creatures with hearts and all creatures with hearts are creatures with kidneys, but there is nothing necessary about it. It's just a empirical co-extension. So not only you will have to say that all necessary statements are a priori and all a priori statements are necessary, but you will also have to say that this thing itself is necessary. Only then will you have a theory which says that all analytical that it is analytic, that statements which are analytic are necessary in a priori. Yeah, it just happens to be so, and therefore it cannot become a part of the knowledge which he wants, which is synthetic a priori. कांट की सिंथेटिक ए प्रायरी की मेन समस्या क्या है? मेन समस्या उनकी ये है कि उनको ये लगता है कि जो लाइबनीज और इनके सारे के जितने भी थिंकर्स थे जो कि ये मान के चलते थे कि ज्ञान अपने आप में निश्चित होना चाहिए और उसका मॉडल जनरली प्योर मैथमेटिक्स थी, उनका ये कहना था कि वो ज्ञान अपने आप में हमें कोई नई चीज़ नहीं दे रहा और जो नया ज्ञान हमको मिल रहा है अनुभव के माध्यम से उसमें कोई अनिवार्यता नहीं है. लेकिन ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग हमारी नॉलेज की होती है कि वो अपने आप में उसमें नवीनता भी होनी चाहिए और उसमें निश्चयात्मकता भी होनी चाहिए. तो वो निश्चयात्मकता कहाँ से आएगी? एंड फॉर दैट ही थिंक्स दैट इफ वी एनालाइज वी विल फाइंड दैट देयर इज एन ए प्रायरी एलिमेंट व्हिच इज सप्लाइड बाय अस व्हिच गिव्स अस द नेसेसरी फॉर्म्स ऑफ इंट्यूशन, द नेसेसरी categories of understanding, and that is where how our knowledge becomes synthetic a priori. And this is in fact the kind of knowledge, because, and this is a peculiar kind of a desire which Kant has, but it is also a desire of the ordinary person. Knowledge अगर क्षण क्षण बदलती रहेगी तो उसको knowledge कहेंगे क्या?
क्योंकि आपने तो शुरू से नॉलेज की डेफिनेशन क्या ली थी, दैट विच इज, हाँ, तो आपकी सिंथेटिक अपोस्टेरियरी नॉलेज है, आपकी एनालिटिक एप्रायरी नॉलेज है, पर जो आप बढ़िया नॉलेज मानना चाहते हैं, जो आपकी डिजायर है नॉलेज की डेफिनेशन में, वो सिंथेटिक एप्रायरी है, एंड ही थिंक दैट दैट्स अ सुपीरियर काइंड ऑफ नॉलेज. एनालिटिक एप्रायरी नॉलेज तो होती है, सिंथेटिक एपोस्टेरियरी नॉलेज तो होती है, बट व्हाट वुड बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉलेज according to him would be synthetic and a priori, which has both the elements of novelty and as well as necessity. And how will it have that? It will have the experience providing you with the elements of all of that. In that, the sensations will provide you with the material and your faculty will provide you with that. इसमें बार बार ये होता है, if you look at anybody from K.C. Bhattacharya to Mohanty, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसमें लोगों को बहुत स्ट्रांगली ये दिखाई देता है कि नोअर अपने आप में दुनिया को जैसे देखता है, उसके फॉर्मुलेशन में नोअर की भूमिका है, और ये नोअर की भूमिका को ही लाने को वो कोपरनिकन रेवोल्यूशन कह रहे हैं. लेकिन इससे ज़्यादातर लोगों का कंक्लूजन ये निकलता है कि आप आइडियलिज्म की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नोअर, नोइंग ऑब्जेक्ट, कॉन्शियसनेस उसका प्रिंसिपल फीचर, इसको ज़्यादातर आइडियलिज्म का, बट कांट इज वेरी स्ट्रांगली रेजिस्टिंग दैट एंड अगेन ही इज ट्राइंग टू से, अगेन जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, देयर आर यूनिवर्सल एंड नेसेसरी फीचर्स ऑफ नॉलेज विच विल गिव यू द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक एप्रायरी जजमेंट. अब यूनिवर्सल होना और नेसेसरी होना बहुत ज़रूरी है. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि वो कहते हैं कि नेसेसिटी एंड स्ट्रिक्ट यूनिवर्सैलिटी, और फिर कई बार ज़्यादातर जो कमेंटेटर्स वो कहते हैं कि स्ट्रिक्ट यूनिवर्सैलिटी आपको अलग से कहने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि स्ट्रिक्ट यूनिवर्सैलिटी में जब अगर आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब डाल देते हैं तो वो नेसेसिटी ही तो है. कंटिंजेंट फीचर जो ओवरलैप कर रहे होंगे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में, उसको तो आप स्ट्रिक्ट यूनिवर्सैलिटी मानेंगे ही नहीं. तो इनसे व्हेन यू आर गिविंग एप्रायरिसिटी की कंडीशंस आप दो दे रहे थे, व्हाट इज एप्रायरी नॉलेज, दैट विच इज यूनिवर्सल, स्ट्रिक्टली यूनिवर्सल, एंड दैट विच इज नेसेसरी. लेकिन आपकी स्ट्रिक्ट यूनिवर्सैलिटी अल्टीमेटली नेसेसिटी में ही तो कन्वर्ट हो जा रही है. तो हाउ आर यू सेइंग कि ये दो हैं, एक ही तो क्राइटेरिया है. एक बात. दूसरी बात जो मैंने आपसे कही थी कि एप्रायरी को क्या आप नेसेसरी से इक्वेट कर रहे हैं, या आप कह रहे हैं कि एप्रायरी की कंडीशन है नेसेसिटी, या आप कह रहे हैं कि नेसेसिटी एप्रायरिसिटी से जानी जा सकती है. पॉसिबिलिटी हो जाएगी तो स्ट्रिक्ट यूनिवर्सैलिटी एक तरीके से डेफिनेशनल ही हो जाएगी. तो फिर देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग गिविंग टू क्राइटेरिया, इट इज एक्चुअली इफेक्टिवली ओनली वन. सो स्ट्रिक्ट यूनिवर्सैलिटी in one way seems to be only necessity, and therefore Kant's formulation, and see, this is where I am trying to call your attention to. We are not just reading Kant and trying to understand Kant, but I am illustrating to you what is meant by reading something through the glasses of philosophical analysis. So we are not making a judgment about right or wrong. We are trying to see that if he means this, then what does it mean? If he means this, what does it mean that? Did he really mean that? Of course, it's a scholarly question. We are not God to go into people's mind. But we are trying to see the implications of what kind of reading will lead to what kind of a situation. And it does seem that Kant's assumption here is that an a priori knowledge is a knowledge of which brings in necessity, and necessity and strict universalities are the conditions of a priori knowledge, and that is necessary for knowledge. Therefore, only experience cannot give you necessity, because experience can tell you what is the case, it cannot tell you what must be the case. Therefore, you need to have an a priori element, and that a priori element is going to explore in the next sections.